Hello class 10th. Welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about pair of linear equation in two variables part 3 in which we solve the exercise 3.2 remaining questions. Second कहता है on comparing the ratios a1 over a2 b1 over b2 and c1 over c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. वो ये कह रहा है कि अनुपातों a1 over a2 b1 over b2 और c1 over c2 को कंपेयर करिए, उनकी तुलना करिए और ये इन जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स हैं, जो रैखिक समीकरणों के युग्म हैं, इनसे ये आपने प्रदर्शित करना है, ये निरूपित करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और समांतर हैं या पैरेलल हैं, और तीसरी चीज वो कहता है कि वो कोइंसिडेंट यानी संपाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0। तो ये सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इनको नाम दे देते हैं। 5x minus 4y plus 8 equal to 0 is equation number first. If we compare this equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, then we have a1 equal to 5, b1 equal to minus 4 and c1 equal to 8. Now in equation second 7x plus 6y minus 9 equal to 0, if we compare again a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we have a2 equal to 7, b2 equal to 6 and c2 equal to minus 9. Now a1 over a2 ratios, a1 over a2 equal to 5 over 7। यहाँ से हम देख सकते हैं हमने a1 निकाला था, a1 हमारे पास में 5 है और a2 हमारे पास में 7 है, तो then we can say that a1 over a2 equal to 5 over 7। Now b1 over b2, b1 equal to minus 4 and b2 equal to 6, so then we can say that b1 over b2 equal to minus 4 over 6 and c1 equal to 8, c2 equal to minus 9। We can write at c1 over c2 equal to 8 over minus 9, but we stopped our process here. If a1 over a2 and b1 over b2 are not equal, then we can say that a1 over a2 is not equal to b1 over b2. Then the lines representing the given pair of equations have a unique solution, and the pair of lines in question number second, the part of second question is 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 equal to 0। इसका solution देखते हैं। Let us suppose that we have supposing the 9x plus 3y plus 12 equal to 0 is equation number first. If we compare this equation in a1x plus b1y plus c1 equal to 0, then we have a1 equal to 9, b1 equal to 3 and c1 equal to 12. Now in the same way, second equation 18x plus 6y plus 24 equal to 0. Now if we compare the general equation, general linear pair of equations, say a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we have a2 equal to 18, b2 equal to 6 and c2 equal to 24. Now if we compare the coefficient of x and coefficient of y and constant term, the ratios of a1 over a2 equal to 9 over 18, which is 1 by 2, b1 over b2 that is 3 by 6, which is also equal to 1 by 2, and if we compare c1 over c2, that is 12 over 24, which is also equal to 1 by 2. Now we can say that a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2. Then the lines representing the given pair of equation are coincident and there are infinitely many possible solutions। तो इस केस में क्या होंगी कि रेखाएं आपकी संपाती होंगी और संपाती होने पर उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। Part of the question number second is 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0। सॉल्यूशन देखते हैं। 6x minus 3y plus 10 equal to 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इफ वी कंपेयर, अगर हम इसकी तुलना जर्नल इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से करेंगे, then we have a1 equal to, तब हमारे पास में a1 equal to 6 होगा, b1 equal to minus 3 and c1 equal to
10 होगा. In the same way, if we compare the 2x minus y plus 9 equal to 0, which is called as second equation, and compare with a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then a2 equal to 2, b2 equal to minus 1 and c2 equal to 9. The ratio of coefficient of x, that is a1 over a2, a1 over a2 equal to 6 over 2, which is gives us 3 upon 1, or b1 over b2, which is minus 3 over minus 1, or we can rewrite as 3 over 1. So a1 over a2 equal to b1 over b2. Now c1 over c2 is what? c1 over c2 equal to 10 over 9. Now a1 over a2 equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2. इस केस में हम ये कह सकते हैं कि रेखाएं आपकी क्या होंगी? पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी. The lines representing the given pair of equations are parallel and there is no possible solution. इस स्थिति में इसका कोई भी हल नहीं होगा. Number third is, question number third आपसे ये कहता है, on comparing the ratios a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2, find out whether the following pair of lines linear equations are consistent or inconsistent. वो कह रहा है कि जो अनुपात हैं आपके पास में, रेशियो हैं a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2, इनकी आपने क्या करनी है? कंपेयर करना है, इनको इनकी तुलना करनी है. और तुलना करने के बाद में ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कंसिस्टेंट हैं, संगत हैं, या इनकंसिस्टेंट हैं, असंगत हैं. तो ये हमें बताना है. पहला पार्ट हमारे पास में है 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7. तो सॉल्यूशन में हम 3x plus 2y equal to 5 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं. इफ वी ट्रांसपोज 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, so it gives us minus 5. Then we can rewrite as 3x plus 2y minus 5 equal to 0. And comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, then we have a1 equal to 3, b1 equal to 2 and c1 equal to minus 5. In the same way, the 2x minus 3y equal to 7 is our equation number second. If we transpose 7 from right hand side to left hand side, so here 2x minus 3y minus 7 equal to 0. Compare with a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we have a2 equal to 2, b2 equal to minus 3 and c2 equal to minus 7. Now ratio of a1 over a2, that is 3 over 2. यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा a1 हमारे पास में क्या है 3 और a2 हमारे पास में क्या है 2. तो a1 over a2 equal to क्या हो गया 3 upon 2. If b1 over b2, तो b1 equal to 2, b2 equal to minus 3. तो then we can say that b1 over b2 equal to minus 3. तो minus 3 हमारे पास में 2 over minus 3 आ गया ये. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि a1 over a2 is not equal to b1 over b2, because a1 over a2 equal to 3 upon 2 and b1 over b2 equal to 2 over minus 3. ये हमारे पास में है. तो तब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देन वी कैन से दैट इट इज अ कंसिस्टेंट. These lines are consistent, or the pair of linear equation are consistent. पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास में है 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9. 2x minus 3y equal to 8 को हम लिख सकते हैं 2x minus 3y minus 8 equal to 0. Equation number first. If we compare with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, we have a1 equal to 2, b1 equal to minus 3 and c1 equal to minus 8. In the same way, 4x minus 6y minus 9 equal to 0. Compare with a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then a2 equal to 4, b2 equal to minus 6 and c2 equal to minus 9. On comparing the ratios a1 over a2, that is 2 over 4, which can be written as 1 by 2. b1 over b2 minus 3 over minus 6, minus से minus cancel हो गया, 3 over 6, that 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, which is equal to 1 by 2. Again c1 over c2,
that is minus 8 over minus 9, minus minus cancel हो गए तो 8 over 9. Then we can say that a1 over a2 equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2. In this case we can say that the lines are parallel and there is no possible solution. Then we can say that the pair of linear equations are inconsistent. हमारे पास में है 3 by 2 time x plus 5 by 3 time y equal to 7 and second equation है 9x minus 10y equal to 14. तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, 7 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 3 by 2x plus 5 by 3 time y minus 7 equal to 0 which is equation number first. अगर हम इस इक्वेशन की तुलना करें, कंपेयर कर दें a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से, तब हमारे पास में a1 equal to होगा 3 by 2, b1 equal to होगा 5 by 3 और c1 equal to होगा minus 7. Similarly, if we compare 9x minus 10y minus 14 equal to 0 with a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we have a2 equal to 9, b2 equal to minus 10 and c2 equal to minus 14. Now the ratio a1 over a2 that is 3 by 2 upon 9. यहाँ हमारे पास में क्या है, a1 की वैल्यू थी 3 by 2 और a2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 9. तो जब हमारे पास में न्यूमरेटर पार्ट न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर में होता है तो हमारे पास में क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल हो जाता है. तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट 3 और 9 टू ज़ा 18, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हो गया. तो इसे हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 1 by 6 हमारे पास में आ गया a1 ओवर a2. नाउ इफ वी कंपेयर b1 ओवर b2, तो b1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 5 by 3, यहाँ से तो 5 by 3 रखी और b2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है minus 10. तो इन द सेम वे न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास में न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से 3 minus 10 के साथ मल्टीपल कर जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 5 over minus 30. तो 5 over minus 30 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, तो 1 over minus 6. Then we can say that here a1 over a2 is not equal to b1 over b2 because a1 over a2 equal to 1 by 6 and b1 over b2 equal to minus 1 upon 6 or 1 upon minus 6. Minus 1 upon 6 means if we multiple minus 6 in the denominator part, both side if we multiple minus 1 over minus 1, then we can say that minus 1 into minus 1 that is minus 1 and minus 6 into minus 1 that is plus 6, तो that is minus 1 upon 6. जब भी माइनस साइन अगर आपका डिनोमिनेटर पार्ट में है तो वो आपका किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता है. स्टैंडर्ड फॉर्म आपका तब कहलाएगा जब डिनोमिनेटर पार्ट से आप माइनस साइन को हटा देंगे. तो यहाँ पर हमने C1 ओवर C2 को भी ले लिया, लेकिन C1 ओवर C2 लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि A1 ओवर A2 और B1 ओवर B2 से ही पता लग गया कि ये हमारे पास में इक्वल नहीं है रेशियोज. तो A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2. देन वी कैन से दैट lines intersecting each other at a point and there is only one possible solution or a unique solution. Fourth part of this question is 5x minus 3y equal to 11 and the second equation is minus 10x plus 6y equal to minus 22. If we transpose 11 from right hand side to left hand side, so then it is minus 11. Then we can write as equation first as 5x minus 3y minus 11 equal to 0. On comparing with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, then we have a1 equal to 5, b1 equal to minus 3 and c1 equal to minus 11. ये हमारे पास में हो जाएगा. और in the same way second equation is minus 10x plus 6y minus 22 है, उसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोज मतलब स्थानांतरित करेंगे, तो हमारे पास में प्लस 22 हो जाएगा. तो माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड. कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन वी हैव a2 इक्वल टू माइनस 10, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 22. ये हमारे पास में हो गया. And the ratios a1 over a2 equal to 5 over minus 10, this is
1 over minus 2. If we cancel out 5 and 10, 5 1 ja 5 and 5 2 ja 10, so 1 over minus 2, and multiple both numerator and denominator minus sign, then 1 into minus 1, that is minus 1, and minus 2 into minus 1, that is plus 2. So then a1 over a2 equal to minus 1 upon 2. सेकेंड b1 ओवर b2, b1 ओवर b2 इक्वल टू माइनस 3 ओवर 6, ये हमारे पास में आया, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, minus 1 upon 2. a1 over a2 and b1 over b2 both are equal, that is minus 1 by 2. Now we compare c1 over c2, that is minus 11 over 22, 11 1 ja 11 and 11 2 जा 22, that is minus 1 by 2. Now a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2. ये तीनों हमारे पास में क्या है, इक्वल है. तो इक्वल होने पर हमारे पास में क्या होगा, ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, यानी कोइंसिडेंट होंगी. तो देन वी कैन से दैट if the lines are coincident, then there is infinite number of possible solution, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और then the pair of linear equations are consistent. तो उस केस में आपके पास में जो रैखिक समीकरणों का युग्म है वो क्या होगा, consistent यानी कि संगत होगा. Of the question number third, that is 4 by 3 times x plus 2y equal to 8 and 2x plus 3y equal to 12. If 8 transpose from right hand side to left hand side, then 4 by 3x plus 2y minus 8 equal to 0. This is equation number first. Comparing with a1x plus b1y plus c2 equal to 0, then we have a1 equal to 4 by 3, b1 equal to 2 and c1 equal to minus 8. ये हमारे पास में होगा. In the same way, 2x plus 3y minus 12 equal to 0, equation number second, comparing with a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we have a2 equal to 2, b2 equal to 3 and c2 equal to minus 12. On comparing the ratios a1 over a2 with b1 over b2 with b1 c1 over c2, so then a1 over a2 is 4 by 3 times 4 by 3 upon 2. न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास में किस में है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर में है. तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीपल हो जाएगा. तो 4 बाई 6, 4 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 बाई 3. सेकेंड b1 ओवर b2 हमारे पास में है, b1 ओवर b2 दैट इज 2 बाई 3. नाउ a1 ओवर a2 and b1 over b2 both are same, that is 2 by 3. Compare c1 over c2, that is minus 8 over minus 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 8 over 12 हमने इसको कैंसिल किया, तो 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12, which is also equal to 2 by 3. Then a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2. Then we can say that lines representing the given pair of equations are coincident, and they have infinite number of possible solution, and the lines representing is consistent. तो pair of line, जो pair of linear equations हैं वो आपके पास में क्या होंगे, समपाती होंगे. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. वो ये कह रहा है कि जो आपके पास में रैखिक समीकरणों का एक युग्म जो दिया हुआ है, ये आपने बताना है कि कंसिस्टेंट यानी संगत है या फिर इनकंसिस्टेंट यानी असंगत है. और यदि इफ कंसिस्टेंट, ये अगर संगत है, तो आपने इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है. तो हमारे पास में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हैं वो हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. सॉल्यूशन में x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर सेकेंड. ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x y and constant term, then a1 over a2 equal to 1 over 2, b1 over b2 equal to 1 over 2 and c1 over c2 equal to 5 over 10, which is written as 1 by 2. Now a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2, which is equal to 1 by 2.
तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो हमारे पास में कोइंसिडेंट हैं, संपाती हैं। संपाती हैं तो इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने x को जो है ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। तो यहां से हमारे पास में सॉल्यूशन टेबल क्या निकल के आएगी, इफ वी पुट x इक्वल टू 0 देन वी हैव y इक्वल टू 5, ये हमारे पास में होगा। और जब हम x का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास में y का मान आ जाएगा 3, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। और इफ वी पुट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ 2 दैट इज माइनस 2, जब हम x की जगह पर माइनस 2 रखेंगे तो हमारे पास में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 7। इफ वी पुट x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 0 हमारे पास में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट्स हमारे पास में क्या क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट हो जाएंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास में 0,5, बी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट 2,3, सी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स -2,7 और डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,0। अब हम केवल इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए पहले ग्राफ बना लेते हैं कि ये ग्राफ हमारे पास में किस तरीके से होगा। हमारे पास देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, जो हॉरिजेंटल लाइन जा रही है हमारे पास में, ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस को डिनोट करेगी, और ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास में जा रही है ये वाई एक्स को डिनोट करेगी। अब हमारे पास में पहला पॉइंट है ए। जब हमारे पास में ए में एक्स 0 की डिस्टेंस चलता है तो y इक्वल टू 5 है, तो यहाँ हमारे पास में 0,5 हो जाएगा। बी पॉइंट में 2,3, एक्स एक्सिस में 2 की दूरी चला और y एक्सिस में वो 3 की दूरी चला, तो 2 के ठीक ऊपर हमारे पास में 2,3 ये पॉइंट हो गया। सी पॉइंट हमारे पास में है -2,7, तो -2 एक्स एक्सिस में गया तो यहाँ लेफ्ट टू 0 दैट इज -2 के ठीक ऊपर 7 पे हमारे पास में ये पॉइंट हो गया -2,7। और डी पॉइंट लेते हैं 5,0, यानी एक्स एक्सिस में हमारी 5 दूरी चला और वाई एक्सिस में ये जो दूरी चल रहा है वो 0 चल रहा है, तो ये हमारे पास में पॉइंट हो गया 5,0। एक स्ट्रेट लाइन से हम इनको, या एक लाइन से हमने इन पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास में इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए बन गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने ग्राफ जो है सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन टेबल लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए जैसे ही हमने सॉल्यूशन टेबल लिया तो वहां से हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आएंगे, तो वो हमारे पास में क्या होगा देखिएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, और y इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 2। तो सॉल्यूशन टेबल में मेरे को इस तरीके से उस x की वैल्यूज रखनी है कि जो मैं जब 2 से डिवाइड करूं तो ऊपर यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये कंप्लीट जो है 2 से डिवाइड हो जाए यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो 2 0 0, तो 10 में से 0 अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 10/2, तो y इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक हमारे पास में x की वैल्यू का ये मान हो गया। दूसरा, जब x इक्वल टू मैं 2 रखूंगा तो x का मान जब मैंने 2 रखा तो मेरे पास में ये क्या मिला, 2 2 जा 4, यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा 2 2 जा 4, और 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 6, 6/2 3 हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3। इफ यू पुट x इक्वल टू -2, तो -2 इंटू 2 दैट इज -4, -4 और माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी है आगे से, तो +4 हो गया। 10 प्लस 4 दैट इज 14, 14/2 7, ये हमारे पास में आ गई वैल्यू। और जब मैं x का मान 5 रख दूं तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 दैट इज 0, 0/2 विच इज 0। तो अब मेरे पास में यहाँ पे से पॉइंट आ गए, ई पॉइंट में मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,5 और एफ पॉइंट होगा जो मेरे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,3, जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2,7 और एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5,0। और इसके लिए अगर मैं अलग से ग्राफ रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास में एक्स एक्सिस हो गई, ये वर्टिकल एक्सिस जो आएगी ये हमारे पास में वाई एक्सिस हो गई, और इस तरीके से मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट कर दूंगा। तो ये मेरे पास में सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ आ गया। लेकिन मुझे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए अलग अलग ग्राफ नहीं देने हैं, मुझे केवल एक ही ग्राफ से इसको शो करना है। तो हमारा नेक्स्ट जो होगा
वो हम इन सभी पॉइंट्स को लेके एक ग्राफ बनाएंगे। हमको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको अलग अलग से ग्राफ नहीं देने हैं। ये केवल मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर ग्राफ अलग अलग दिखा रहा हूँ, और कब ये ग्राफ एक ही उसमें दिखाए जा सकते हैं, किस तरीके से ये होगा। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए बी सी डी हैं, और इक्वेशन सेकंड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ई एफ जी एच हैं। तो इनसे हमारे पास में एक जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ये ग्राफ बन के आएगा। और एक ही लाइन पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो अलग अलग कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक आपके पास में ब्लू कलर है और एक आपके पास में ये ऑरेंज कलर है। तो ये दो कलर एक ही उसमें जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो होगा आपके पास में कैसा ग्राफ होगा, एक कंसिस्टेंट ग्राफ है, एक आपके पास में कोइंसिडेंट ग्राफ है, क्योंकि ये संपाती है, जैसा कि हमने आगे क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हम इनका ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट के सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप स्वयं करेंगे, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है आपके पास में, एक आयताकार बाग है। उस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हाफ पेरीमीटर वो क्या है, 36 मीटर है। अब सेकेंड चीज उसने ये कही है कि उस गार्डन की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो चौड़ाई है उस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। उस गार्डन की, उस बगीचे की डायमेंशंस यानी कि बीमाएं बताइए कि बीमाएं क्या होंगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम सपोज करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड द विड्थ ऑफ और ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी y मीटर। ये हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं तो उसने कहा था कि हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर। आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां से जब हम इसको और मॉडिफाइड करें तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 36 माइनस एक्स। इन द सेम वे द सेकेंड वे हमारे पास में क्या आता है, उसने कहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो देयरफॉर x इक्वल टू वाई प्लस 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 4। ये हमने इसको लिखा। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन टेबल लेनी है y इक्वल टू 36 माइनस एक्स के लिए और y इक्वल टू एक्स माइनस 4 के लिए। तो y इक्वल टू 36 माइनस एक्स यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम सॉल्यूशन टेबल लेके आते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास में y इक्वल टू 36 मिलेगा। जब हम x इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो हमको y इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 30 मिलेगा। If we put x equal to minus 6, तो 36 minus 6 that is 36 plus 6 which gives us 42। y equal to 42 हो गया हमारे पास में, और जब हम x equal to 36 पुट करेंगे तो 0 हो गया। तो then we can say that the coordinates of the points are, इस केस में हमारे पास में जो निर्देशांक होंगे a b c हम जिनको नाम दे देते हैं, तो a हमारा 0,36, b जी 6,30 और c हमारे पास में -6,40 और d हमारे पास में 36, 0 हमारे पास में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए जब हम ग्राफ देंगे तो वो ग्राफ हमारे पास में किस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से हमें शो होगा। हम सारे पॉइंट्स को इस तरीके से दिखा देंगे, जिसको कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस तरीके से ग्राफ आएगा। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल टू वाई प्लस 4 और y इक्वल टू एक्स माइनस 4। सॉल्यूशन टेबल क्या होगा, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास में -4 हो जाएगी। जब x इक्वल टू हम 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। और जब हम x इक्वल टू -5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास में -9 हो जाएगी। और जब हम x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स बनेंगे E F G H, वो हो जाएंगे 0, -4, 5, 1, -5, -9 एंड 4, 0। तो इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए जो ग्राफ आएगा वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमको सिंगल ग्राफ बनाने के बजाय क्या बनाना है, एक
अलग अलग ग्राफ बनाने के बजाय हमने दोनों के लिए एक ही ग्राफ बनाना है, और वो ग्राफ हमारे इस तरीके से बनेगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट whose points are a b c d and the equation second whose points are e f g h and the combined graphical representation is in this way। अब यहाँ पे आपने देखा जो ग्रीन हमारे पास में लाइन जा रही है, ये ग्रीन लाइन हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पॉइंट से बनी हुई है, और जो हमारे पास में ऑरेंज लाइन दिख रही है ये इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए ग्राफ बना हुआ है। अब जब हमने देखा कि ये ग्रीन और ऑरेंज का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट इस जगह पे है, यानी कि 20 के ठीक ऊपर, और यहाँ 10 और 20 के बीच में आपके पास में मिड पॉइंट हो गया 15, और 15 से एक पॉइंट ये आगे है 16 पे, तो हमारे पास में 20,16 ये पॉइंट आ गए। तो तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस गार्डन की जो लेंथ है वो 20 मीटर है और जो ब्रेथ उसकी है वो 16 मीटर है। Now the question number 6 is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines and third कोइंसिडेंट लाइन। वो ये कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, और टू वेरिएबल्स में, दो चर में एक ऐसी आपने लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि आपके पास में जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक जैसा हो, जैसे कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग करती हों, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों दोनों। इस तरीके से आपने उसका एक एग्जांपल देना है। दूसरा पैरेलल लाइंस हों, यानी कि वो समांतर रेखाएं देती हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट आपने एक लीनियर इक्वेशन देनी है टू वेरिएबल्स में। और थर्ड जो है वो कोइंसिडेंट हो, यानी संपाती हो एक इक्वेशन, ऐसा आपने लिखना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन आपके पास में है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमको क्या ध्यान में रखते हुए चलना है? a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, इन रेशियोज को ध्यान में रखते हुए चलना है। इफ a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, तो देन वी कैन से दैट रेखाएं क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, यानी प्रतिच्छेदित करेंगी। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन को लेंगे। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के समानांतर जो दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने देखा a1 ओवर a2 2/3 और b1 ओवर b2 3 माइनस 2। तो therefore we can say that a1 over a2 is not equal to b1 over b2. तो then these two lines intersect each other. सेकेंड हमारे पास में क्या है? पैरेलल लाइंस के लिए देना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइंस होने के लिए हमारे पास में क्या होगा? a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन ले लेनी है। हमने ले ली 4x plus 6y minus 15 equal to 0. If we compare a1 over a2, that is 2 over 4, which gives us 1 over 2. b1 over b2, that is 3/6, which gives us 1 by 2. And third, c1 over c2, that is minus 8 over minus 15. Minus minus cancel हो गए तो 8 over 15. तो a1 over a2 and b1 over b2 both are equal because it gives us 1 over 2, and c1 over c2 is 8 over 15. So then we can say that a1 over a2 equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2. तो hence lines are parallel to each other. थर्ड हमने कोइंसिडेंट के लिए लेना है। तो कोइंसिडेंट के लिए देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 हमारे पास में जो दी गई इक्वेशन है। कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए कि ऑल थ्री रेशियोज a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 आर इक्वल। तो हम इसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं 4x plus 6y minus 16 equal to 0. So a1 over a2, that is 2 by 4. If we cancel out these two ratios, 2 over 4, that is 2 1 2 and 2 2 4, which gives us a1 over a2 equal to 1 over 2. b1 over b2 3/6, that is 1 over 2. And c1 over c2 equal to minus 8 over minus 16, minus a minus cancel, 8 1 8, 8 2 16. So all three ratios a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2, which is equal to 1 by
2. So then we can say that these lines are coincident. Now the last question of this exercise, question number 7. Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. यानी x minus y plus 1 equal to 0 और 3x plus 2y minus 12 equal to 0 के लिए ग्राफ बनाना है. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines. अपने आप समझ में आ रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस से एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, एक त्रिभुज बनेगा, एंड द एक्स एक्सिस एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन. और एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष और इन रेखाओं में जो त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक हैं उनको आपने ज्ञात करके जो आपके पास में एक ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल को आपने शेडेड करना है, छायांकित करना है. तो सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास में x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गई. तो यहाँ से हम क्या लिख लें, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर सकते हैं. हमने क्या किया, माइनस वाई को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमारे पास में आ गया. सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 2 वाई माइनस 12 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x और y इक्वल टू 12 माइनस 3x ओवर 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो हमारे पास में आया था और सेकंड से जो वैल्यू आई है उनसे हम सॉल्यूशन टेबल ले लेते हैं. तो सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के लिए देखेंगे. जब x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, जब x का मान हम 0 पुट करते हैं यहाँ, तो y इक्वल टू हमारे पास में 1 आ जाता है. जब x इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू 3 आ जाता है. जब x इक्वल टू हम माइनस 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 हो जाता है. और जब x इक्वल टू हम माइनस 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हमारे पास में 0 वैल्यू आ जाती है. तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सॉल्यूशन टेबल इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए. इन द सेम वे सॉल्यूशन टेबल फॉर द इक्वेशन नंबर सेकेंड, इफ वी पुट x इक्वल टू 0, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, 3 0 0, 12 माइनस 0 दैट इज 12 ओवर 2, 2 6 जा 12, तो 6 हमारे पास में आ गया. जब हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, 6 ओवर 2 दैट इज 3. एंड अगेन इफ वी पुट माइनस 2 एट x, तो दैट इज 3 2 जा 6, minus minus plus 12 or 6 18, 18 over 2 that is 9. And if we put x equal to 4, 4 3 जा 12, 12 minus 12 0, 0 over 2 equal to 0. तो ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई. अब इन वैल्यूज से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास में ए बी सी डी ई पॉइंट बने और ए बी सी डी पॉइंट बने और इसी तरीके से ई एफ जी एच पॉइंट हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड से बने. तो इनके लिए हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे वो इस तरीके से आपके पास में ग्राफ बनेगा. जो हमारे पास में ऑरेंज कलर की लाइन है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए ग्राफ को शो कर रही है और जो हमारे पास में ब्लू लाइन है ये इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ग्राफ शो कर रही है. तो अब आपने देखिएगा कि एक जो वर्टिसेस आपके पास में बने, यहाँ एक पॉइंट आया, यहाँ पे 0,6 पॉइंट आया और 0,1 पॉइंट आया. इनके द्वारा जो आपके पास में घिरा हुआ क्षेत्र है ये ब्लू कलर से हमने दे रखा है, तो ये आपने इस तरीके से शेडेड करना था. तो ये आपके पास में एक्सरसाइज 3.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 में. थैंक यू.